السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز وہی نٹکھٹ عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈینگی سے محفوظ رکھے اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ڈینگی کے ڈنگ سے محفوظ رکھے. کیونکہ ہمارے ایسوسیٹ پروڈیوسر اشان کے بیمار ہونے کے بعد میں اور اللہ لوگ دونوں بہت سخت گھبرائے ہوئے ہیں. یہ تو چلاک آدمی ہے، پتہ نہیں اس نے کو ڈینگی کے ساتھ موقع کیا ہوا. موقع کیا مطلب یار؟ ڈینگی سے اس قدر خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب جو اس کے حفاظتی تدابیر ہیں وہ اپنانی چاہیے کہ خوفزدہ ہو کر کمروں میں دبک کر بیٹھ جانا چاہیے؟ اب میں نہیں ڈینگی سے دبکتا، وہ دبک کے بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ صرف دبکتا ہے تو چھوڑو اس بات کو، آگے خبر پڑھو تم. عزیز صاحب میں بھی دبک کے نہیں بیٹھی ہوئی، لیکن خوف تو ہے نا اس کا. بہت ڈاٹا، اللہ معاف کرے تو. شہباز شریف نے ڈینگی سے آگاہی کے لیے پیمفلٹس تقسیم کیا اور اپنے ہاتھوں سے حفاظتی سپرے کیا. اور پمفلٹ تقسیم کر کے انہوں نے سب کو کہہ دیا اگر یہ کل تک یاد نہ ہوا تو میں تمہیں ڈینگی لڑا دوں گا. میں تمہیں بتا دوں گا. عزیز صاحب ڈینگی کو تو انہوں نے سپرے کیا ہے. ہاں یار کیا بات ہے شہباز شریف کی. دیکھو اس سے پہلے وزیر اعلیٰ صرف اپنے آپ کو سپرے کرتے تھے، یہ پہلا وزیر اعلیٰ جس نے ڈینگی کو سپرے کیا. اور میں نے سنا اس کو چاڑا بھی ہے کہ ایڈا تو صاف ستھرا مچھر سپرے کر کے باہر نکلا کرنا. عزیز صاحب یہ ڈینگی کو باڈی سپرے نہیں کیا، ڈینگی کو مارنے کے لیے اسے سپرے کیا ہے. پتہ ہے مجھے بھی، اس کو پھنسا کے مارا ہے نا، سمجھا کرو. اس کو پہلے کہا کہ لو باڈی سپرے کراؤ، اس نے بڑے آرام سے کرایا. جب سپرے ہو گیا تو وہ اڑنے لگا تو بیچارہ یہ کیا. یہ وہ ٹپیکل قسم کی فوٹو اپرچونٹیز ہیں جن پر اس پہ کرٹیسائز ہو رہا ہے، سیلاب ہو یا ڈینگی ہو، کہ حکمران جو ہے وہ ان کو اپنی تشہیر کے لیے استعمال کریں. اب کیا ضرورت پڑی ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ جو تعارفی پمفلٹ ہے وہ تقسیم کرتے رہیں یا خود سپرے کریں. سپرے انہیں کرنے دیں جن کا کام ہے، تعارفی پمفلٹ وہ تقسیم کریں جن کا کام ہے. وزیر اعلیٰ صاحب وہ کام کریں جو وزیر اعلیٰ صاحب کا کام ہے، یعنی اپنی مینجمنٹ کو ٹھیک کریں. اب بھائی جی جب لڑائی شروع ہو جائے تو پھر بڑوں کو بھی باہر نکلنا پڑتا ہے. ایڈا بڑا ڈینگی، جتنے اس نے ہمارے مارے ہیں ہم بھی اس کے اتنے ہی ماریں گے. بڑا حساب ہے. اچھا جی، پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ میں امریکیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، ڈرون حملوں کی اجازت کبھی نہیں دی. بالکل، مشرف صاحب امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور باہوں میں باہیں ڈال کر ڈیل کرتے تھے اور ساتھ گانا بھی گاتے تھے. میں ڈیل کراں یا ڈیل کاں، میرا تن من ڈیلو ڈیل، میں سودے کیتے ملک دے، میں کیتی ایسی ڈیل، اور رات جنے دی چاننی تے پونی ورگا کاں، میں اٹھاں بیٹھا سواں جاگاں لواں امریکہ دا ناں، اور ٹوٹو 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 ٹوٹو. یار ویسے مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ مشرف صاحب نے یہ بیان دیا کہ میں امریکیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا تھا. استغفر اللہ. اسی لیے تو آج کل بیچارے گانا گا رہے ہیں. نگاہیں ملا کر بدل جانے والے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہم پر کرپشن کے الزامات تو بچپن سے ہی لگ رہے ہیں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. ہنس کیوں رہے ہو یار؟ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ اور سنو تو صحیح، مرشد نے کیا دیا ہے. تو وہ سچے آدمی ہے، سچ کہہ رہے ہیں. بچپن میں بھی الزامات لگ جاتے ہیں. چھوٹا بھرا کہہ دیتا کہ یہ بڑے بھائی نے میری ٹافی کھا لی ہے، آگے سے بڑا بھائی کہتے میں نے تو نہیں کھائی. لگتے ہیں بچپن میں الزامات. بندہ گھر کا سودا سلب لینے جاتا ہے تو گھر والے کہہ دیتے ہیں تم کو 100 روپیہ دیا تھا، کہاں گئے باقی پیسے؟ سبزی لینے گئے تھے، روٹیاں لینے. پھر بچہ حساب دیتا ہے، اصل میں نا میں نے کھائی نہیں ہے، 20 روپے کی سبزی آئی ہے اور 20 روپے میں نے سبزی والے کو دی ہیں، 40 ہو گئے. اور 20 روپے کی روٹیاں آئی ہیں اور 20 روپے میں نے تندور والے کو دیے، 80 ہو گئے. اور 10 روپے میرے ہاتھ میں سے نیچے گر گئے اور 10 روپے ہوا سے اڑ کے نالی میں چلے گئے.
20 ये हो गए, 100 पूरा हो गया। अमेरिका का कहना है कि वो अपने दिफा के लिए किसी भी मुल्क पर हमला कर सकता है अजीज साहब। लेकिन दुनिया का कोई मुल्क अपने दिफा के लिए कुछ नहीं कर सकता, और इस बात का फैसला भी अमेरिका हमेशा खुद करता है कि उसे किस मुल्क से कितना खतरा है। इस तरह का हमारे महल्ले में एक बदमाश होता था, हाकू छप्पड़। उसने एक मस्कीन आदमी को ये कह के मारना शुरू कर दिया कि मैं जब भी इधर से गुजरता हूँ तुम बड़ा मुझे कूर कूर के देखते हो। बड़ा कोटा उसे। दूसरी दफा ये छप्पड़ उधर से गुजर रहा था, उसने मुंह परे कर लिया, उसको फिर मारना शुरू कर दिया। नहीं नफरत। फिर छप्पड़ उधर से गुजरा, उस बेचारे ने उसे देख के तो आंखें नीचे कर ली, फिर उसे मारना शुरू कर दिया। कहता है एटला पड़ने है मारना। एग्जैक्टली यही हाल है। फिर छप्पड़ उधर से गुजरा, वो बेचारा उठ के तो गली में घुस गया, उसे पीछे जाके मारना शुरू कर दिया। बंदे लेने चले आए। फिर एक दफा वो बेचारा मस्कीन उधर ही बैठा रहा, छप्पड़ को देख के हंस के कहता है पहलवान जी ठीक ठाक हो। फिर उसे मारना शुरू कर दिया। ठीक ठाक किया, मैंने शुगर हुई। यार मुख्तसर बात करो, मिलाकर बना क्या हाकू छप्पड़ का? बस उसे फिर शुगर हो गई और वो मर गया। मुलाजमत में तोसी के लिए इजाज भट्ट की दरखास्त मंजूर नहीं की गई, सदारती तर्जुमान। हाय मेरे अमाल का, नौकरी नहीं बढ़ाई इजाज भट्ट साहब की। यार ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि भट्ट साहब बेचारे खाना खा रहे हो और तंदूर वाले को कहेंगे यार 6 रोटियां और दी, वो आगे से कह दे नहीं भाई जी मैं थक गया। या भट्ट साहब प्लेट आगे करके होटल वाले से कहे यार थोड़ी सी दाल और पा, आगे से होटल वाला कह दे भट्ट साहब पिछली दफा जनाब पतीला खुरच के डाली थी और जब आप आए थे जनाब उस वक्त पतीला भरा हुआ था, बीच में मोहम्मद यूसुफ भी था, यूनुस खान भी था, इमरान नजीर भी था, मोहम्मद आसफ भी था, मोहम्मद आमर भी था, सलमान भट्ट भी था, सारा तो आप खा गए हैं यूं। ये आखिरी प्लेट में आपको शाहिद अफरीदी खुर्च के डाल के दिया। अब आप ही बताएं आपको कैसे रजाए जनाब, भूखे हो तुमको कैसे रजाए बेटा, थक जाओ ना थक जाओ ना। नाज़रीन खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक जमाई रोकना दिमाग के लिए नुकसानदेह है। ये देखा क्या खबर आ गई है, तुम मुझ पे हमें रौब डालते रहते हो कि क्यों इधर बैठ के ये जमाइयां लेते रहते हो। तुम्हें क्या खतरा है? दिमाग के लिए खतरा है यार, दिमाग अगर होगा तो खतरा होगा ना। बहुत अच्छे, दिमाग नहीं है तो और मैंने ऊपर किराएदार रखे हुए। ये क्या कर रहे हैं अजीज साहब? दिमाग सेहतमंद कर रहा हूँ। यार मैं भी कहूं कि हमारी कौम को इतना इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है, सारा दिन वेले बैठ के जमाइयां लेते रहते। ये बिल्कुल ठीक रिपोर्ट है, कभी जमाई आए तो उसे नहीं रोकना चाहिए। एक जमाई और एक जुआई अगर आ जाए तो उसको वेलकम कहें, उसे रोके तो खतरा होता है। अमेरिका के एक शॉपिंग सेंटर ने मलबूसाते अरूसी सस्ते कर दिए, दुल्हनों की स्टोर की तरफ दौड़ें लगवा दी। हाँ, मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, वो बहुत मजे का है। दिखाओ जरा। ये ले। हाय 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 हाय, इतनी दुल्हनें होती हैं अमेरिका में? यार यहाँ तो एक बड़ी मुश्किल से मिलती है। देखो तो सही, एक एक दुल्हन ने 4-4, 5-5 लिबास उठा लिए। ये तो मैं जब माइकल से शादी करूंगी ये हो गया माइकल वाला, और ये हो गया डेविड वाला, और ये आ जाएगा आप ही कोई पागा वाला। देखो तो सही, इस तरह रूसी लिबास को पड़ गई है जैसे डेंगी पाकिस्तानियों को नहीं पड़ गया। दौड़ ही लग गई है बेचारियों की, हर 3 महीने बाद खामद की जो दौड़ लगवा देती है, चलो दौड़ो। बहुत शादियां करती हैं यार ये अंग्रेज औरतें, और तो दर्जन को शादियों के बाद इनकी जो हालत होती है ना, वो वीडियो मैं तुम्हें दिखाता हूं, तो दिखाना जरा वो दुल्हा दुल्हन वाली वीडियो। ये ले जी, ये देखो ये दुल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, इनकी भी रस्में होती हैं। बड़ा मामा दूल्हे और दुल्हन को गचक खिलाता है। ये देखो दूध पिलाई की रस्म हो रही है। सही। हाँ हाँ हाँ, चलो शाबाश। अद्धा बाकी जूठा पीता है दूल्हा, और दुल्हन का मेरा ख्याल है कुछ रह गया।
बीड़ी उसका 2 वाले गिलास में जा पड़ा। इससे पिछला 11वां ब्याह इसने मियां वाली के किसी पाकिस्तानी से किया था। वो मियां वाली के बंदे का तो हाथ ही इतना लंबा होता है, जहां हमारी कोनी होती है ना वहां उसका अंगूठा होता है। उसने कहीं लाडियां की हैं तो उसका बीड़ी निकाल दी। अब वो बेचारी 12वें दूल्हे को कह रही है कि जानू दिल तो मैंने पिछले दूल्हे को दे दिया था, तुम ये मेरा बीड़ी रख लो। अच्छा अजीज साहब, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाती हूँ। दिखाओ यार, आज तो इंग्लिश वीडियो ही दिखा रहे हो। नहीं नहीं, ये वाली लोकल है जो दिखाने लगी। अच्छा जी, दिखाओ जी। ये देखें, ये क्या वीडियो है? ये तो मुझे लग रहा है मियाँ बीवी जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे। या अल्लाह खैर करे मेरे अम्माल, कैसा दलेर भाई है। बीवी को पीछे बिठा के जो वन व्हीलिंग शुरू हो गया जी। देखो यारा, कर्मा वाली पीछे बैठी यारा नहीं घबरा रही। ये पाकिस्तानी बीवी है ये, जिसका एक दफा पल्लू पकड़ ले फिर छोड़ती नहीं है। देख लो जरा नहीं घबरा रही, वो बैठी हुई है आराम से, बल्कि दिल में ये कह रही है सोनिया पिछे पईया बीवियां मगरों न लेंदियां भावें लख वन व्हीलिंगां करिए। पाकिस्तानी बीवी तो भाई जी कबर दी कंधा तक साथ देती है। मेरे ख्याल से बीवियों की वीडियो फुटेज बहुत ज्यादा हो गई, अब कोई डिफरेंट वीडियो होनी चाहिए। डिफरेंट दिखाओ यार। ये ले डिफरेंट देखें। वाह जी वाह, ये तो लग रहा है कोई बंदा बतखे को टाई बांध रहा है। ये बतखा एंकर है यार। मैंने तो टाई नहीं लगाई। कमाल का, अब मैं समझाऊं, ये अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है ना, उसने यहाँ से आइडिया लिया। पाकिस्तानियों को उसने गले इतने को बांध दिए कि सिर्फ सांस लो खाओ कुछ ना, हमारे लिए शिकार करो खाएंगे हम। अच्छा अजीज साहब, अब जो नेक्स्ट वीडियो दिखाने लगी हूँ ना, उसमें आप देखेंगे हजामत का एक अनोखा तरीका। शाबाश जी, सारी वीडियो मियां बीवी की दिखा रही है। इसको मियां बीवी कहाँ से आ गए? इसके नजदीक हजामत का सिर्फ एक ही मतलब है। अच्छा जी, दुनिया में कोई और हजामत भी होती है? देखिए तो सही, ये देखें। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लाइव लाइट ने क्रिकेट छोड़ के जानते शुरू कर दी। बहुत बड़ा क्रिकेटर हुआ क्लाइव लाइट। जी जी, वो देखो ये अफ्ताह करने लगा गेमों का। देखो तो ये हजामत का तरीका। ये देख लें। ओह माय गॉड, हाय 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 हाय। तौबा। असल में ये लोग जो है ना, ये कई कई दिन नहाते नहीं है। फिर जो नाई होते हैं ना, वो हाथों से हजामत करते हुए डरते हैं कि बालों में से कोई मूजी जानवर न लड़ जाए। फिर ये सर को आग लगा के हजामत करते हैं ताकि मूजी जानवर भी मर जाए और बाल भी छोटे हो जाए। वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अब मुझे पता चला कि ये ओबामा इतना सिर सड़िया क्यों है। जुनैद साहब, अल्लाह ताला आपको इस दूध पत्ती की जजा देगा यार। वो इसमें ना दूध है ना पति है। ना शुक्र आदमी है, मगर चलो शुक्र करना चाहिए, इसका नाम तो दूध पति है। इधर लिखवा दिया करो पेंसिल के साथ, ये दूध पति है। बंदा पढ़ के तो तसल्ली में आ जाता है ना, चलो चुस्की लगाने से भावे ना महसूस हो। यार मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी, बल्कि शेयर करनी थी एक बात तुमसे। अल्लाह खैर करे। मेरा एक दोस्त है, प्रिंस, प्रिंस उसे सारे हम कहते हैं। हर वेले बंदे को प्रिंस कहते हैं। अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से थड़े पे बैठ जाना, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी मर्जी से बात करना वरना ना करना, ऐसे बंदे को प्रिंस कहते हैं। अंग्रेजी में उससे ज्यादा कहते हैं ना। 95% दोस्त जो प्रिंस है। यार मेरा एक कोई दोस्त प्रिंस है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। नाम उसका खावर है। अच्छा, वैसे वो प्रिंस प्रिंस उसे कहते हैं। यार एमए उर्दू कर बैठा हुआ है। एक दिन मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार को कामकाज करते कहता है ये तुझे क्या बताऊं मैं, एमए उर्दू कर बैठा हूं। वाले साहब मेरे कहते रहे कि खावरियां पुत्र एमए उर्दू ना करो, नौकरी नहीं मिलनी। क्या फायदा है एमए उर्दू का? नौकरी मिलना तो दूर की बात है, जिस मोहल्ले में तुम रहते हो को उर्दू बोलने वाला नहीं तुम्हें मिलना। कहता मुझे शौक चढ़ा हुआ था शेर और शायरी का, मैंने एमए उर्दू कर लिया, अब मैं प्रिंस लगा हुआ। यार वैसे ये जो एमए उर्दू या एमए फारसी या एमए मुतालिया पाकिस्तान कर लेते हैं, जितने भी समाजी इल्म है, उनको नौकरी क्यों नहीं मिलती यार? ये किसका कसूर है? एमए करने वालों का, और किसका होना? ना करे बंदा इस तरह का एमए। मेरा ख्याल है हम सब का कसूर है।
क्यों ना किया जाए इस तरह के सब्जेक्ट्स में एमए? सही बात है, इस तरह के सब्जेक्ट्स में भी एमए करना चाहिए ताकि मोहल्ले में प्रिंस भी हो। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ हमारा ये अलमिया नहीं है कि हमने तालीम को कैरियर से जोड़ दिया है, बल्कि पूरी दुनिया में ये जुर्म सरजद हो रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि हम सब इस तरह शरीक है कि हमने तालिब इल्म के ज़हन में ये बिठा दिया है कि तुमने पढ़ना है सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि नौकरी हासिल करने का एक बड़ा जरिया तालीम है, और तालीम का एक बड़ा मकसद जो है वो नौकरी हासिल करना है। लेकिन सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं, तालीम का मकसद है अपने आप को तालीम याफ्ता बनाना। हम इस मकसद से दूर होते जा रहे हैं। नहीं तो तलीम बंदा नौकरी के लिए हासिल करता है और तलीम याफ्ता होकर पागल खाने दाखिल हो रहा है। नहीं, देखो असल बात यह है कि समाजी अलूम जो है उनकी एक अपनी अहमियत है, और हमारी हुकूमत को, पूरे माशरे को, और ख़ास तौर पर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है इसको इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि तालीम सिर्फ मनी मिंटिंग के लिए नहीं की जाती। हमारे यहाँ जो टेक्निकल अलूम पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर है, असल में ये तीसरी दुनिया के मुल्कों का अलमिया ये है कि हमें इस तरह जकड़ दिया गया है कि ताकि देखो तालीम का मकसद क्या है, अच्छा इंसान बनना, तालीम याफ्ता इंसान बनना। आज कह दिया जाता है यार तुम तारीख की तालीम हासिल कर रहे हो, चंद तारीखी वाकयात को रट्टा लगा के तुम क्या हासिल कर लोगे? नहीं, बड़ा कुछ हासिल होता है। बंदा कलीमा लेके थड़ों पे बैठ के गुफ्तगू करता है कि जब कोलंबस ने मूव किया अमेरिका की तरफ तो रास्ते मुंह से कस्तनतुनिया से जब राइट साइड पे जाना पड़ा तो उधर पड़ाव डाला हुआ था न्यूटन के दादा बोल रहा है, फजूल बोलता जा रहा है यार। तारीख सिर्फ तारीखी वाकयात का नाम है। तारीख हमें अपना हाल तामीर करने का दर्स देती है, तारीख हमें अपना मुस्तकबिल संवारने का तरीका और सलीका सिखाती है। मैं इसमें खास तौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज को मुर्द इल्जाम ठहराता हूं, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज को अपनी एक हंटिंग प्लेस बना लिया, शिकार का बना लिया, कि जो उनके लिए मनी मिंटिंग करते रहे। मल्टीनेशनल कंपनी पहले से ये देखती है और फिर यूनिवर्सिटीज को फंड देते हैं इस शर्त के साथ कि इसको सिर्फ टेक्निकल तालीम पर खर्च किया जाएगा। मेरे ख्याल में इन इदारों का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि वहां पर तालीम की यानी फरोग तालीम की बात हो। ये उनका काम नहीं है कि वो यूनिवर्सिटियों को डिक्टेट करें कि आप हमारी जो फराहम करदा रकम है किस मद में खर्च करें, बल्कि तालीम पर रकम खर्च होनी चाहिए। गुड, ये देख लो तालीम हासिल करके कितने दलेरी के साथ मल्टीनेशनल कंपनियों को फोर्स नहीं करना चाहिए। ये जो मल्टीनेशनल इंटरनेशनल अदारे हैं इनके थीसिस के तहत बड़ी बात है भाई जी। या ये एंकर कर सकता है या को पागल कर सकता है। बोलते जा रहे हो इसलिए दूध पत्ती पिलाई है तुम्हें? नहीं, बड़ा अक्लमंद आदमी और ये दूध पत्ती इसने मुझे पिलाई है, हालांकि इसमें मेरी पत्ती भी है। देखो कितना नाशुक्र है, सारा दिन घर में मिन्नत समाजत करता रहता है, एक प्याला नसीब नहीं होता तुम्हें। घर में जा काम करे जाके। अभी मैं जब निकलने लगा हूँ स्कूटर पे बैठा हूँ तो मुझे पीछे से प्याला नसीब हुआ है इधर। मैंने कहा पलिए लोके, इसमें 2 घुट दूध पत्ती भी डाल देती तो चला सर को ही आराम आ जाता। सर वैसे स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक किसी भी जगह पे सोशल साइंसेस को या ह्यूमैनिटीज को इनकरेज नहीं किया जा रहा? नहीं, एक जगह है जहां इनकरेज किया जा रहा है, वो जिस जगह पे ये बैठा हुआ। इसका खुमियाजा भी तो पूरी दुनिया भुगत रही है ना। एक अंदाजे के मुताबिक 1950 से लेकर आज तक पूरी दुनिया में कोई भी आलमगीर सतह पर अपना जो आलमगीर यानी इंटरनेशनल इंपैक्ट रखने वाला कोई एक स्कॉलर या फिलोसफर भी पूरी दुनिया ने पैदा नहीं किया। बहुत अच्छे, तुम्हारी मेरी तरफ नजर नहीं पड़ती क्या? मैं 1950 के बाद की बात कर रहा हूं। तुम ये देखो 50 की दहाई से पहले जब दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज इस कदर कमर्शलाइज नहीं हुई थी, उस वक्त एक ही वक्त में दुनिया की मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज थी उसमें लगभग 150-200 के करीब इस तरह के आलिम थे, स्कॉलर्स थे, फिलोसफर्स थे जो अपना एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट रखते थे, असर रखते थे और अपने तजर्बात, मुशाहिदात शेयर करते थे, जिसके नतीजे में एक वर्ल्ड व्यू बना करता था मुख्तलिफ मसाइल पर। और वो इंसानियत की तरक्की के लिए था। बल्कि तुम इंसानी तारीख उठा के देख लो, इंसान की जो साइंसी तरक्की है वो भी समाजी अलूम की तरक्की से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि जो रहती दुनिया तक का शायद सबसे बड़ा साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, उसने फ्रांस काफ्का के बारे में कहा था कि उसकी तहरीरें इंसान के जहन पर खराशें डाल देती है, यानी उसका इतनी असर अंगेज तहरीरें इंसान की जिंदगी तब्दील कर देती हैं। गलत मतलब ना निकालो, उसने कहा था कि खराशें डाल देती हैं मतलब दिमाग खराब कर देती है। बस करो यार। जैसे बच्चे को पेचकस या कैंची पकड़ के दीवार पे खराशें नहीं डाल देते, फिर अब्बा घर आके कहते हैं ये किसी नामाकूल ने किया है। मैं लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक।
ये बंदा बहुत ही गुंजलदार गुफ्तगू करता है। मैं भी कहता हूँ इसके बालों को इतने गुंजल क्यों पड़े हुए। यार पाज जुनैद, देखो मैं जो लतीफा और हंसी मजाक है ना इसको बड़ा पसंद करता हूँ। मैंने कब कहा कि तुम फलसफे को पसंद करते हो, तुम इसी चीज को पसंद करते हो। हाँ हाँ, इस पे मुझे फख्र है और बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें मेरी ग्रूमिंग की है। और देखो किस बुढ़े बारे मेरी ग्रूमिंग हुई है। ये लोग जो है ना कि अब लतीफे गोई को बिल्कुल यार इन्होंने मजाक सा बढ़ा दिया। अब SMS कर देते हैं, वो लतीफे का पढ़ने में मजा ही नहीं आता। पहले तो वो चुके समझ ही नहीं आती लफ्ज क्या है, जब थोड़ा बहुत मुंह पे चढ़ जाए तो फिर उतनी देर में मैया मर गया होता है। नहीं बाकी ये दुरुस्त कह रहे हैं, लतीफा गोई की रिवायत जो सदियों पुरानी है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, चाहे वो दही कल्चर हो या शहरी इलाकों में। बाकायदा लतीफा गोई की महफिलें मुनक्किद हुआ करती थी, देहातों में भी शहरों में भी थड़ों पर बैठकर चारपाइयों पर महफिल सजा करती थी और हर शख्स अपने हिस्से का एक एक लतीफा सुनाया करता था। वो कल्चर अब सिर्फ जो है वो मोबाइल मैसेजिंग या सोशल वेबसाइट्स तक, बल्कि हमारी जो कुल सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इन्हीं 2-3 जगहों पर सिमट के रह गई है। यार ऐसा अजीब अजीब लतीफा भेजते हैं, हर लतीफे की अपनी मत मार देते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि फोन की भी नाल मत मारी जाती है। अभी सुबह मेरे एक फोन पे SMS किया किसी ने लतीफे का, पहले तो मेरा हल्का सा रोना निकला, फिर मैं काफी देर हंसता भी रहा हूँ। लतीफा क्या था कि एक बच्चा अपनी दादी अम्मा से पूछता है कि दादी अम्मा हम 5 जी हैं घर में, एक मैं और मेरी बहन, एक अम्मी और एक अब्बू और एक आप, ये 5 जो हैं ये 5 ही रहेंगे, ये बड़े घटेंगे नहीं। तो दादी आगे से कहती है नहीं बेटे तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर हम 6 हो जाएंगे। कहते लो फिर बाजी की शादी हो जाएगी तो हम फिर 5 रह जाएंगे। दादी आगे से कहती है बेटे फिर अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटा दे देगा हम फिर 6 हो जाएंगे। आगे से कहता है कि दादी अम्मा फिर आप फौत हो जाएंगी तो हम फिर 5 रह जाएंगे। दादी जुत्ती उतार के कहती है उठा उतरिया तेरे हिसाब ते लानत ना मरादा, मेरे को हिसाब ग्राउंड है कि मैंने डराउंड है। कितने कितने यार अजीब लतीफा यार ये SMS कर देते। अच्छा अजीज साहब आपने नोट किया है कि लतीफा सुनाना भी एक फन है। हाँ बहुत बड़ा फन है। मैं कहता हूँ कि कई बंदे लतीफा फिका सा सुनाते हैं तो हसासा के लम्बियां पा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और कई बंदे बेचारे चंगे पढ़े रईस आदमी पढ़े लिखे लोग लतीफा अच्छा भला सुनाते हैं और लतीफे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सारा लतीफा खत्म हो जाता है तो बंदा पूछता है अच्छा फिर क्या हुआ। फिर आगे से कहते हैं कि भाई जी खत्म हो गया लतीफा, उतनी देर में लतीफा ICU में दाखिल हो गया। और मोबाइल मैसेजिंग के जरिए जो जोक्स भेजे जाते हैं उसमें जो सबसे खौफनाक पहलू इस वक्त मैं जिसका खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि हम बगैर ये देखें कि ये जो जोक है ये किसी की दिल आजारी का बायस तो नहीं बन रहा, खास तौर पर सुबाइयत के हवाले से या खास तौर पर इस तरह के जोक्स हम बगैर देखे भाले फॉरवर्ड कर देते हैं जो किसी खास कम्युनिटी को हिट करते हैं या टारगेट किए होते हैं। हमें बहुत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल सही। ये दिल आजारी से मुझे याद आया है कि बहुत ही बदतमीज बच्चे ने मुझे एक दिन एक लतीफा भेजा। लतीफा क्या लिखा हुआ है कि उस्ताद शागिर्द से जिथों दी खोती उथे आन खलोती, इसका मतलब बताओ। अच्छा। स्टूडेंट, इसका मतलब है अजीजी घर वापस आ गया। और ये खुश होने की बात नहीं है, तुम्हारी हमाकतों के अब लतीफे बनना शुरू हो गए। यार खुश नहीं मार यार, मैं रो रहा हूँ यार, तुम्हें ऐनक में यार चिट्टी ऐनक में भी नहीं नजर आ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये दिला यारी वाले लतीफे नहीं बनने चाहिए। ये पिछले दिनों बर्तानिया में इस हवाले से डेली मेल ने एक सर्वे किया है जिसमें 2000 जो नौजवान है सिर्फ उनसे सवालात पूछे गए और उन 2000 में से हर तीसरे नौजवान ने यह जवाब दिया है कि उनको कोई एक लतीफा भी याद नहीं है और 18% का जवाब यह था कि उन्हें एक आध लतीफा आता है लेकिन उसकी भी वो पंच लाइन सुनाने से कासर है। और 90% का जवाब यह था कि अगर उन्हें कोई लतीफा आता भी है तो वो किसी महफिल में बैठकर वो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनमें लतीफा सुनाने के लिए जो एतमाद दरकार है वो नहीं है। या एतमाद नहीं है या लतीफा ही इतना गंदा है कि महफिल में सुनाने वाला नहीं है। अच्छा अजीज साहब मैं आपसे पूछती हूँ, लतीफा सुनाने के लिए कौन सी 3 चीजें अहम है? पहली बात तो यह है कि लतीफा अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। दूसरी बात यह है कि लतीफा सुनाने वाले का अंदाज अच्छा होना चाहिए। तीसरा यह कि जो लतीफा सुनने वाला बंदा है
اس کی سینس آف ہیومر بھی بڑی اچھی ہونی چاہیے. بالکل سر. آگے سے ہنسے انجوائے کرے لطیفے کو, آگے سے اس کی طرح سڑا ہوا نہ ہو کے مگر نپولین نے جب یہ بات کی تھی اس وقت چرچل بڑیرے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. اب میں آپ کو نمونے کے طور پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں پیارے بچوں. ایک جگہ پہ گاڑیوں کی نیلامی ہو رہی تھی. ایک گاڑی بڑی اچھی بہترین گاڑی نئی تھی, اس کی بولی شروع ہوئی 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ. دوسری ایک اور نئی گاڑی آئی, اس سے بھی اچھی, اس کی بولی شروع ہوئی 15 لاکھ 15 لاکھ 15 لاکھ 15 لاکھ. اس کے بعد ایک ٹوٹی پجی گاڑی آئی جناب, بالکل برباد سی, اس کی بولی شروع ہوئی تو کہتے ہیں جناب 25 لاکھ 25 لاکھ 25 لاکھ. وہ بندہ ایک بیچ میں سے کہتا ہے مجمع میں سے, اب بھائی جی نئی گاڑیاں 10-15 کی ہیں, یہ ٹوٹی پجی گاڑی کیوں 25 لاکھ کی ہے, اس میں کیا خوبی ہے؟ کہتے ہیں بھائی جی اس میں سب سے اعلیٰ کوالٹی یہ ہے کہ اس گاڑی کا 10 دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہر دفعہ خاوند بالکل بچ گیا ہے اور بیوی فوت ہو گئی. یہ سننا تھا کہ سارا مجمع شروع ہو گیا, 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ ہلا لڑا ہو گئی. تم نے ہنسنا تھا, اس نے نہیں تھا ہنسنا. عزیزی صاحب آپ خواتین کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے میں نے جو لطیفے کی 3 کوالٹیز بیان کی تھیں وہ فیل ہو گئی. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. یار کوئی شہر میں لطیفے کا سیانا بندہ نہیں ہے, اس سے مشورہ ہی کر دے. عزیز صاحب آج حسب ڈاک میں پہلی میل ہمیں کوئٹہ زیارت سے موصول ہوئی ہے. اچھا جی. انور سبور لکھتے ہیں جنید صاحب اس وقت ملک چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے. آپ کئی معاملات پر کھل کر بات کرتے ہیں, پھر میڈیا پر تنقید کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں جو عدلیہ اور فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ 2 جواب. میں انور صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ تمام کا تمام میڈیا جو ہے وہ عدلیہ اور فوج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے میں ملوث ہے. ہاں میرا خیال جس طرف انور صاحب کا اشارہ ہے وہ واقعی تشویشناک رجحان ہے. ابھی کل ہی میں ایک چینل پر اسی طرح کے ایک تجزیہ نگار کی گفتگو سن رہا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر مہینے امریکہ تشریف لے جاتے اور واپس آ کر پھر وہ اس انداز میں واپس کی بات شروع کرتے, اور بدقسمتی سے ان کے پروگرام کا وقت بھی ایسا ہے جس وقت وہ یعنی خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی ترنگ کے عالم میں وہ ایک ایسا خوفناک نقشہ پاکستان کے لیے گزشتہ روز کھینچ رہے تھے جس میں انتہائی بے رحمانہ انداز میں وہ فوج کو اور عدلیہ کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے تھے اور فرما رہے تھے, یعنی وہ قرار دے رہے تھے کہ یہ دونوں قومی سلامتی کے ادارے یہ ایک سازش میں شریک ہیں, یہ ایک یعنی اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح جمہوریت کا جو بستر بوریا ہے وہ لپیٹ دیا جائے. یہ دونوں ادارے جمہوریت کش بھی ہیں. نہ جانے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, یہ لوگ پاکستانیوں کو اور پاکستان کو کس صورت سے ڈرانا چاہتے ہیں. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ حضور والا اگر خدا نخواستہ اس طرح کی صورتحال جو آپ ڈپکٹ کر رہے ہیں پیدا ہو جاتی ہے ملک میں تو آپ نے تو امریکہ چلے جانا ہے یا ہندوستان چلے جانا ہے. اس کا مقابلہ کون کرے گا, قوم کو اس مشکل سے کون نکالے گا؟ فوج ہی نکالے گی نا, یا عدلیہ جو پوری قوم کے لیے ایک آس اور امید کا استارہ بن کر ابھری ہے اس کو آپ بے توقیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دانشور صاحب کی آپ پچھلے 3-4 ماہ کی ریکارڈنگز اٹھا کے دیکھ لیں, اس انداز میں رتھلیسلی انہوں نے قومی سلامتی کے اداروں کو اور جو ہمارے پلرز آف سٹیٹس ہیں ان کو اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کی ہے کہ یقین نہیں آتا. ایک منٹ یار, اللہ لو کے اگلی خبر پڑھ دو, اس نے تو سارے ان کے کچے چٹھے کھول کے رکھ دے. ابھی تو کوئی بھی کچا چٹا نہیں کھولا میں نے. میل پڑھ دو, اس کے پاس ان لوگوں کے بڑے کچے بھی ہیں اور چٹھے بھی ہیں. اچھا جی, محمد وقاص راولپنڈی سے لکھتے ہیں میرے عزیزی صاحب سے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ کھانا کھانے کے بعد بھوک کیوں نہیں لگتی؟ یہ بندہ کو باٹ لگتا ہے بھائی. اور دوسرا یہ کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں نیند کیوں نہیں آتی؟ سوالوں اپنوں سے تو مجھے یہ لگے. اب میں اگر آپ کے ان سوالوں کا جواب دے دوں تو آپ کل کو مجھے کہیں گے کہ یار اگر جوتی پہن لے تو کنڈا کیوں نہیں چبھتا, اگر کچی ہانڈی پہ ایٹ مارے تو سالن کیوں باہر اڑ جاتا ہے, اگر کسی کو زور سے دندی بڑھے تو اس کو نشان کیوں پڑ جاتا ہے, اگر دھوپے کپڑے ڈالیں تو سوکھ کیوں جاتے ہیں, ٹوٹی کے نیچے ہاتھ کریں تو یہ گلے کیوں ہو جاتے ہیں. اچھا
बकवास उनके करते हैं। सवालों का मंतकी जवाब दो, बात गोल ना करो। यार इसमें कौन सी मंतक है, जाने दो, तुम्हारी तो माता मारी तो गई। इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि अगर सोकर उठो तो इसलिए नींद नहीं आती कि नींद पूरी हो जाती है, और अगर खाना खा लो तो इसलिए भूख नहीं लगी कि भूख मिट जाती है। इतने आसान जवाब थे यार। ओहो, मैं भी कहूँ लोग मुझे दानिश्वर क्यों नहीं मानते। अच्छा, मोहम्मद वकास साहब ने कहा है कि आप हम तीनों से कहा है कि मेरे लिए दुआ करें क्योंकि वो डिसेबल हैं और वो पढ़ भी रहे हैं साथ साथ। अल्लाह ताला खैर करे, पहले बताया करो ऐसी बात। मैंने कहा वो सवाल पहले अल्लाह कर लो आपको बड़ी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और बड़ी आमीन। कामयाबी अता फरमाए। आमीन। वेल डन, गॉड ब्लेस यू। बैकअप। बस कभी इतनी अंग्रेजी ना बोलो, मुंह में मोच आ जाएगी। अच्छा जी, अगली मेल हमें उमर ने लाहौर से लिखी है। लिखते हैं, मेरी तरफ से आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एमएससी का स्टूडेंट हूँ। या अल्लाह खैर, आज सारे पढ़े लिखे बंदे ही खत डाल रहे हैं यार, तुम खुद ही निबड़ो। मैं फीके से बहुत मुतासिर हूँ। वो तंगदस्त है पर खुददार है। जब भी वो टीवी पर आता है तो अब्बू की आंखें भर आती हैं। उनका बचपन भी ऐसा ही गुजरा है, तंगी में। मैं सोचता हूँ कि जिस कौम के फीके इस हाल में भी खुददार हैं, उसके हुक्मरान तमाम वसाइल के बावजूद खुददार क्यों नहीं। $100 मिलियन क्वेश्चन। अल्लाह ऐसे हर फीके की मदद फरमाए और उसकी खुददारी को कायम रखे। आमीन। असल में ये जो फीका है ना जी, ये इसी एहसास को उजागर करने के लिए इधर बुलाया जाता है जिस एहसास का आपने जिक्र किया है और जो आपके अंदर मौजूद है। और फीका हमें ये बताता है कि हुक्मरानों के रोने रोने की बजाय हम हुक्मरानों को वोट डालते हुए इस बात का ख्याल रखें कि जो खुददार है, जो अपनी इज्जत को जानता है और जो बाइज्जत जिंदगी खुद भी गुजारना चाहता है और आवाम को भी बाइज्जत जिंदगी देना चाहता है, उनको वोट दे। बिल्कुल सही। हाय 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 हाय, देखो जरा अजीजी ने किस कदर दानिशवरी की बात किया। तेरे सदके जाऊंगा जी। सही कह दिया ना सारा, बिल्कुल सही कह दिया। थैंक यू। अच्छा जी, हसन मंजूर कराची से लिखते हैं, मेरा सवाल अजीजी भाई से है कि अगर जुनैद अंकल के घर आपके घर दोनों साथ साथ होते तो फिर भी आप इसी तरह लड़ते रहते। अस्तगफिरुल्लाह। हसन मंजूर साहब किस चीज का बदला लेना चाह रहे हैं मुझसे? एवं नहीं अस्तगफिरुल्लाह कह रहा है, इसको पता है ना, इसका घर अगर मेरे घर के साथ होता तो मैंने हर 2 मिनट के बाद बनेरे पे चढ़ के आवाज लगा देनी थी, भाभी जी ये देखो आपको क्या किया है, मैं बनेरे से कपड़े उतारने जा रहा हूँ और ऊपर खड़ा होकर सज्जे खब्बे देख रहा है। हाय 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 हाय, भाभी ने नीचे से ही कहना था, अरे सुनते हो, आओ जरा नीचे। अब तुम्हें मैं धो के डंडे के साथ बनेरे पे डालती हूँ। ये नहीं कहना तो तुमने 24 घंटे ऊपर चढ़ के एक ही आवाज देनी थी, भाभी जरा ऊपर आए, आपकी भाभी को गुस्सा चढ़ गया, मुझे उससे बचाएं। अगली मेल पढ़ा करो हमें। अच्छा जी, गुजरावाला से हमें मोहम्मद अली तारिक लिखते हैं, मैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लाया हूँ अजीजी साहब। मैं आपका स्कूटर लेकर आपको ये कार दे रहा हूँ, वो भी सिर्फ 2000 रुपए में। कार के बड़े फायदे हैं, जब तक चलानी हो चला लें, जब चाहे ठंडी करके खा लें और बीज बच्चों को मारकर लुत्फ अंदोज हों। और भाभी से जरूर मशवरा कीजिए। शाबाश, खा ले जी। और ये कौन सी बाबे दे बागां दी चौसी कार है? आप खुद ही देख लें जी, सब ये लें। अच्छा, बैठा भी हुआ है अंदर। उन्होंने बिठा के भेजी है। अल्लाह जानता है, मैंने कई प्रोग्रामों से दुआने का जिक्र नहीं किया, मगर देख लो लोग अब दुआना लेके मेरे पीछे पड़ गए। ये देखो यार, नुक्कर में उसने कार की शिटपड़ी भी काट के रखी हुई है ताकि गाहक को पता चल जाए भाई जी कार लाल है। अच्छा जी, अगली मेल हमें मौसूल हुई है, जिन साहब ने लिखी है, नाम नहीं बताया। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम नाजिया आपी, इंटेलिजेंट अजीजी सर एंड जुनैद अंकल। वाओ साहब, गुड। आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। अजीजी सर से एक बात पूछनी थी कि वो हर ख्वाजा सरा की बात शुरू करने से पहले यही लिखा हुआ है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि हाय क्यों कहते हैं? ये असल में खुसरे का सल्फ होता है जी, हाय। खुसरा स्टार्ट हो जाता है इससे। खुसरे 2 किस्म के होते हैं, एक तका स्टार्ट होता है और एक सेल्फ स्टार्ट होता है। हमारा प्रोग्राम चूंकि रिच प्रोग्राम है, इसलिए मैं सेल्फ स्टार्ट खुसरा दिखाता हूं।
ناظرین یہ سب کچھ رہا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.